Good morning, students. Now, in this chapter, we learn about more commands in Visual Basic. For example, handling common controls, inputting and outputting in Visual Basic, message box and input box functions. Handling common controls. Controls are useful objects that can be placed in the form to perform various tasks. They are used to create Windows application. Means जब आप VB पे वर्क करते हैं तो फर्स्ट स्टेप is open the VB. Then your VB screen will be divided into three parts: toolbox, forms, and property box. The form is a control area where we can create number of controls. For example, label box, text box, command button, etc. So first is setting controls property. Control properties can be changed there in design mode or run mode depending on the requirement. आप अपने requirement के according वहाँ पर label boxes और text boxes और command buttons हम create करते हैं. Methods is first is during design time. So during design time the properties are changed through properties window. You can open properties window by pressing F4 key or right click on a control and select properties menu item. Some common properties are name. आप जो बॉक्सेस क्रिएट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको चेंज करनी है. फॉर एग्जांपल आप लेबल बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं या टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं तो जब आप क्लिक करेंगे तो इन द राइट साइड पिन इट ओपन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड द फर्स्ट इज नेम. दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ कंट्रोल. आप बॉक्स का क्या नेम रखना चाहते हैं वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं. देन बैकग्राउंड कलर. तो बैक कलर इट इज़ यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंट्रोल. फॉन्ट इट इज़ यूज टू सेट द फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट size, etc. For color it is used to set text box color. Text it is used to display text on the control. During runtime the properties of control are changed through the coding. The following syntax is used for change the properties. मीन्स अब अभी आपने हैंडलिंग कमांड पढ़ा जिसमें फर्स्ट था ड्यूरिंग डिज़ाइन टाइम. आपने बॉक्सेस क्रिएट कर दिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपने चेंज कर दी. देन आप प्रोग्रामिंग विंडो पे जब जाएंगे तो डबल क्लिक ऑन द कमांड बटन. सिंटेक्स इज ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स वर्क्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 100. तो आपने जो टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन फॉर्म में क्रिएट करा हुआ था उसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स 1 dot text equals to 100. In the above example, the text property of text box control is changed and 100 will be displayed in the text box. तो text box में 100 डिस्प्ले होकर आने लग जाएगा जब प्रॉपर्टी बॉक्स में जाकर आप वैल्यू को चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेबल 1 डॉट टेक्स्ट. आप लेबल बॉक्स क्रिएट करते हैं. देन इफ़ यू वांट टू राइट एनी टेक्स्ट इन लेबल बॉक्स देन गो टू प्रॉपर्टी ऑप्शन, सेलेक्ट द लेबल बॉक्स एंड चेंज देयर प्रॉपर्टीज़. तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू एंटर नेम. टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू कलर कोलन साइन रेड. तो when you write label 1 dot text equals to enter number, it displays enter number in label 1. Then when you change the color of text box, then it change the color as red. Next is button. Button is used as a command button through which the user gives a command to perform an event by clicking or double clicking on it. When you want to create a program, then in form window it is necessary to create a command button. Then when you click or double click on command button, you direct jump to coding window. So button is mainly used to execute a program or give any other instructions like save, open, main event control buttons. And if you want to save your program, or if you want to open your program, if you want to create a command button, and if you want to click on that particular button, then we use command button. Next is text boxes. When you want to display a text on the screen, then we use text boxes. Text boxes control is used to display output or accept input from the user. It can handle string and numeric data but not image or pictures. When you enter the value in form, when you create a form or design a form, and when you create a text box, and if you want to ask to enter some values, then it is necessary to create text box on the form window. When you create a text box on form window,
देन change the text box property. तो steps are some more properties of text box control are max length. It defines the number of character that can be entered in a text box. आप text box में जो भी टाइप करना चाहते हैं उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे ये आप डिफाइन कर सकते हैं. मल्टीपल लाइन्स आप डिफाइन कर सकते हैं. पासवर्ड कैर सेट अ कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रिक टू हैव द टेक्स्ट बॉक्स सर्व एज फील्ड फॉर एंटरिंग पासवर्ड. पासवर्ड एंटर करने के लिए जैसे हम लोग डॉट्स या स्टार यूज़ करते हैं तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं पासवर्ड कैर में. देन रीड ओनली, टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी लिख रहे हो वो रीड ओनली हो, उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, देन यू यूज़ रीड ओनली. सेट द प्रॉपर्टी टू ट्रू टू रिस्ट्रिक्ट द एडिटिंग बाय यूज़र इन टेक्स्ट बॉक्स. तो जब आप रीड ओनली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो कोई भी थर्ड पर्सन टेक्स्ट बॉक्स में लिखे हुए कैरेक्टर्स को डिलीट नहीं कर सकता है. देन रीड ओनली टेक्स्ट बॉक्स, व्हेन अ प्रोग्राम वांट्स टू प्रिवेंट अ यूजर फ्रॉम चेंजिंग द टेक्स्ट दैट अपीयर्स इन टेक्स्ट बॉक्स इट कैन सेट द कंट्रोल्स रीड ओनली प्रॉपर्टी टू ट्रू. तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट रीड ओनली इक्वल्स टू ट्रू. तो जब हम प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसको ट्रू कर देंगे तो वो वहाँ पर जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो फिक्स हो जाएगी, कोई भी थर्ड पर्सन उसको डिलीट नहीं कर सकता है. जैसे कि यहाँ पर आपको विंडो में शो करा जा रहा है मल्टी लाइन और रीड ओनली. यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स लिखा होता है. अगर आप वैल्यू ट्रू कर देते हैं यहाँ पर तो जो भी हम एंट्री करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में वो कोई भी थर्ड पर्सन डिलीट नहीं कर पाएगा. मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट सिंगल लाइन ऑफ कैरेक्टर. इफ़ यू नीड टू एंटर मोर देन 1 लाइन इन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यू शुड चेंज द मल्टी लाइन प्रॉपर्टी टू ट्रू. तो यहाँ पर भी मल्टी लाइन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है. अगर आप उसमें मल्टीपल लाइन्स टाइप करना चाहते हैं देन यूज़ ट्रू ऑप्शंस. तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट मल्टी लाइन इक्वल्स टू ट्रू ऐसा हमें कोडिंग पर लिखना पड़ेगा एंड प्रॉपर्टी में भी चेंज करना पड़ेगा. सिंपल पासवर्ड क्रैकर. In this program, we want to crack a secret password entered by the user. In the design mode, insert a command button and change its name to cmd_show pass. मीन्स आप कमांड बटन क्रिएट कर रहे हैं और उसमें यूज़र ने जो पासवर्ड एंटर करा उसको आप क्रैक करना चाहते हैं. देन क्या करेंगे, कमांड बटन क्रिएट करेंगे और प्रॉपर्टी में जाकर उसका नेम रख देंगे cmd_show pass. इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे एंड रीनेम इट एज txt पासवर्ड. उसका नेम प्रॉपर्टी में जाकर टेक्स्ट बॉक्स का नेम चेंज कर देंगे txt पासवर्ड. एंड डिलीट टेक्स्ट 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी में टेक्स्ट 1 लेकर आता है उसको डिलीट करके txt पासवर्ड रख देंगे. नाउ डबल क्लिक ऑन द cmd_pass बटन. तो यहाँ पर जो कमांड बटन क्रिएट कर रहा था शो पासवर्ड उसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे एंड द टाइप द कोड इन द कोडिंग विंडो. जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप कोडिंग विंडो में जंप हो जाएंगे और यहाँ पर जो कोडिंग लिखी हुई है उस कोडिंग को हम वहाँ पे टाइप कर देंगे बिटवीन प्राइवेट सब एंड एंड सब. तो dis पासवर्ड एज ए स्ट्रिंग योर पासवर्ड इक्वल्स टू txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट. मैसेज बॉक्स योर पासवर्ड इज इन्वर्टेड कॉमर्स कोलन साइन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एम्परसेंड साइन योर पासवर्ड एंड सब. अब जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उसके लिए आप ये कोडिंग करेंगे. देन अब कोडिंग करने के बाद आप प्रोग्राम को रन करेंगे. तो रन करने के लिए प्रेस F5 की. जैसे ही आप F5 की को प्रेस करेंगे आपके सामने ये जो नीचे विंडोज शो करी गई हैं ये विंडो ऑप्शन आ जाएगा. देन क्लिक शो पासवर्ड बटन टू रिवील द पासवर्ड. आप जैसे ही शो पासवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी पासवर्ड आपने सेट करा होगा प्रोग्राम में वो यहाँ पासवर्ड सेट हो जाएगा. टू एंश्योर एटिकेट, टू एंश्योर दैट द पासवर्ड रिमेन्स स्ट्रॉन्ग ऑलवेज यूज़ पासवर्ड हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. तो ये हम सभी को मालूम है जब हम नेट पे वर्क करते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है कि ऐसा पासवर्ड रखें जिसमें नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स सारे कैरेक्टर्स वहाँ पर होने चाहिए. तो इस तरीके से एक स्मॉल प्रोग्राम हम लोग पासवर्ड को बनाने का कर सकते हैं.